गुड मॉर्निंग मैम। हेलो।
Hello, Yes, ma'am. Good am morning. I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good morning, Oh, ma'am. okay. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So today we'll do liquid dosage forms. I'll be presenting from my mobile because I have power cut here. So I don't know whether ये बैटरी भी कितनी देर चलेगी. Okay, so let's start with liquid dosage form. Liquid dosage form का मतलब है any dosage form which is liquid in state. ठीक है? इस liquid dosage form में there are main three types of formulations. First is solution, second is suspension, and third is emulsion. ठीक है? Solution means कि your drug is dissolved in your vehicle. Aqueous vehicle हो सकता है, non-aqueous vehicle होता है. Suspension means कि your drug particles they are suspended in a vehicle. मतलब वो suspended है, they are not dissolved. ठीक है? Emulsion means कि there are two liquid phases. एक oily phase है और एक water phase है. And those two phases are immiscible with each other. ठीक है? So today we will cover pharmaceutical solutions. Okay? Pharmaceutical solution is that type of dosage form which is prepared by dissolving the active ingredient or drug in any vehicle. That vehicle can be aqueous solvent or it can be non-aqueous solvent. Okay? Now there are various routes for which you design any solution. ठीक है? आप लोगों ने घर पे अभी तक कौन सा लिक्विड डोजेज फॉर्म देखा है जो कॉमनली यूज्ड होता है? Tablets. Have you seen? Ma'am, liquid. Oh, Tablet sorry, is a ma'am. liquid dosage form? हाँ, liquid. Ointment, ma'am. Ointment is a liquid. Crossing Syrup. Yeah. syrup. Syrup. Crossing syrup, ma'am. Syrup. Cough, Yes, cough, ma'am. Crossing cough syrup, ma'am. syrup. Cough syrup is a very common example. It is a very common example. Cough syrup is a very common example of liquid dosage form which can be found at anybody's home. Now there are Eye various drops, ear types drops. of solutions which हाँ वो सारे liquid dosage form है. ठीक है? Now there are various types of solution which are formulated for different areas of application. ठीक है? जैसे orally you consume syrup. Then there are some certain elixirs, there are certain drops जो आप orally which you administer. Syrups आपको पता है? Cough syrup is one of the example. मतलब जिसमें sucrose base ज़्यादा होता है जिस solution में उसको हम syrup बोलते हैं. ठीक है? Now elixirs are nothing but they are flavored aqueous solutions. ठीक है? इसका basic सा example है whenever you go to any Ayurvedic Excuse me, ma'am. doctor or some. Yes. Can you keep जी, your हाँ phone जी. in landscape mode and please reduce the brightness because the yellow part is not, visible properly. Okay, can you see this now? Just a second. Is it visible to you now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. It is better. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So syrups जो है, syrup जिसमें sucrose base ज़्यादा होता है, then comes the elixirs. Elixirs क्या होते हैं? Elixirs are flavored solutions. मतलब simple flavored water is example of elixir. Suppose if we add cardamom, इलायची वाला पानी अगर होगा, so that is elixir. So sometimes the Ayurvedic doctors they prescribe कि you have to take this इलायची वाला पानी or अजवाइन वाला पानी for 1 month or 2 months. So that is an example of elixir. Then drops. कुछ एक चीजें ऐसी होती है which come in a dropper. ठीक है? You have to take it using that dropper. Now there are certain type of solution which are used in mouth and throat. Mouth में you might have seen mouthwashes common है. Chlorhexidine mouthwash बहुत common है which people use. Then gargles, betadine gargles you might have seen betadine gargles. Then throat sprays. There are certain sprays which you use for getting rid of throat infection. ठीक है? Now then there are few solutions which can be used in body cavities. उसमें आते हैं डाउचेस, एनिमास, ईयर ड्रॉप्स, नेजल स्प्रेस. ईयर ड्रॉप्स जो होगे जो आप ईयर कैविटी में डाल रहे हो. नेजल स्प्रेस क्या होगे जो आप नॉस्ट्रिल्स में मतलब नोज कैविटीज में डाल रहे हो.
एस्थमेटिक्स जो पंप्स जो एस्थमेटिक्स कुछ एक स्प्रेज लेते हैं थ्रू नोज, वो नेजल स्प्रेज होते हैं, ठीक है. देन डाउचेस. Douches is any kind of solution which is used for cleansing purpose of any cavity. ठीक है. Cleansing purpose के लिए जो आप यूज करते हो, those are called douches. ठीक है. फिर आते हैं enemas. Enemas are the solution which are administered through rectum. Rectum से जो administer किए जाते हैं. Now enemas can be used for just cleaning purpose. वो cleaning purpose के लिए यूज किया जा सकता है. It can be for diagnostic purpose, or it may sometimes contain a few medicaments also. Then on body surface के ऊपर आप यूज जो करते हो, that those are called as topical formulations. ठीक है. इसमें आते हैं collodions और lotions. ठीक है. Lotion तो you might have seen body lotion, आपने जो देखा होगा, that is a basic example. Then collodions क्या होते हैं? Collodions are a certain type of solution which are used in the surgical dressing. Like suppose if someone has any type of wound and the doctor is dressing that wound. So first he will place a thin cotton layer place कर लिया. Then he will apply collodion solution onto that. Then he will place another cotton thin layer. So then that whole dressing, due to collodion, when it dries up, it solidifies the dressing, and so that dressing remains intact on that wound. That is the use of collodion. Now, why do we use solution? Why do we use liquid dosage form when we have solid dosage form? So there are few advantages of liquid dosage form in comparison to solid dosage form. ठीक है. Solid dosage form में generally you have seen tablets and capsules. ठीक है. सबने देखी होगी tablet कैसी होती है, capsule कैसी होती है. Now suppose if I have a paracetamol tablet और वहीं पे एक paracetamol का सिरप पड़ा है. अब मेरे लिए इजी कौन सा होगा swallow करना, सिरप होगा या टैबलेट होगा? Syrup. Any of you? Syrup, ma'am. Syrup. So that is the advantage of solution, that they are easier to swallow. ठीक है. सबसे ज्यादा एडवांटेजेस से किस केस में होते हैं? चिल्ड्रन के केस में और एल्डरली पेशेंट्स के केस में. ठीक है. और या फिर कोई अनकॉन्शियस है, उसको भी आप टैबलेट नहीं स्वेलो करवा सकते हो, लेकिन लिक्विड आप उसको दे सकते हो. लिक्विड क्या होगा, वो थोड़ा सा अगर उसको मूवमेंट के स्पेस मिले तो वो स्टमक तक पहुंच ही जाएगा. ठीक है. So it is easier to swallow. Secondly, it is more effective, quickly effective than tablets and capsules. Now I'll explain how. Whenever we take any tablet or capsule, then that tablet or capsule, it goes into our stomach. Stomach में हमारे जो fluid होएगा stomach में, उस fluid की presence में tablet will break. Tablet पहले बड़ी fragments में टूटेगा, then it will break into smaller fragments. फिर वो स्मॉलर जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो हमारे मीडिया में, जो हमारे स्टमक में मीडिया होगा, उसमें डिसॉल्व जब होंगे तब वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा बॉडी से. मतलब जीआईटी की जो आपकी लेयर है तब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगी. सिमिलरली द केस विद कैप्सूल्स में जो कैप्सूल शेल होती है, पहले दैट शेल गेट्स डिसॉल्व, उसके बाद ही आपके कंटेंट्स जो है वो रिलीज होंगे कैप्सूल से. तो पहले वो जैसे रिलीज हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो पूरे बायोलॉजिकल फ्लूइड जो हमारा स्टमक में होगा, जो मीडिया होगा, उसमें वो डिस्पर्स हो जाएंगे और उसके बाद वो डिसॉल्व होंगे, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा. लेकिन सॉल्यूशन के केस में वी वर सेइंग कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो ड्रग है दैट इज डिसॉल्व इन अ मीडियम. तो जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो वो दो प्रोसेस तो बाईपास हो गए, ना डोजेज फॉर्म में ब्रेक डाउन होना है, ना फ्रैगमेंट होना है, और ना मीडियम में मतलब डिसॉल्व होना है. वो ऑलरेडी डिसॉल्व है, वो सिर्फ मिक्स होगी हमारे स्टमक में जो फ्लूइड है उसके साथ, and then the absorption process will start. So the absorption process in case of solution is very fast. Obviously liquid है तो फटाफट absorption होगा in comparison to tablets and capsules. अगर absorption fast है, blood में जल्दी पहुंच रही है मेडिसिन, तो effect is more quick. जितना जल्दी absorption होगा उतना जल्दी effect आएगा. So therefore second advantage is it is quickly effective in comparison to tablets and capsules. Third advantage is कि these solutions are homogeneous, but we are talking about in comparison to suspension and emulsion. Solution मैंने कहा था, solution is a liquid dosage form in which the drug is dissolved in a vehicle. It can be aqueous vehicle, it can be non-aqueous vehicle. Whereas suspension is a liquid dosage form in which drug is suspended in any vehicle. ठीक है. Suspended है, वो dissolved नहीं है, dispersed है. ठीक है. Now emulsion is a kind of
लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें इमल्शन में आपके जो दो फेजेज है सिंपल, एक वाटर फेज है एक ऑयल फेज है, इमिसिबल फेजेज है दो। एक बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ, होमोजेनस सॉल्यूशन का एक आपका एग्जांपल हुआ, अगर आप शुगर को इफ यू डिसॉल्व इन वाटर तो शुगर गायब हो जाएगी, तो दैट बिकम्स योर सॉल्यूशन। सस्पेंशन का एग्जांपल हुआ कि अगर हम सैंड, सपोज इफ वी आर एडिंग सैंड इनटू वाटर, तो सैंड जो है डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन जैसे हम शेक करेंगे तो सैंड पूरे मीडियम में डिस्पर्स जरूर हो जाएगी, और जैसे ही हम उसे साइड में रखेंगे देन आफ्टर सम टाइम द सैंड विल सेटल डाउन और ऊपर सिर्फ वाटर का लेयर रह जाएगा। सो दैट इज सस्पेंशन। इमल्शन है आपका जैसे लस्सी हुआ, लस्सी में यू हैव सीन देयर इज बटर, बटर के कुछ कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं, देन यू हैव एक्वस फेज, ठीक है, तो दैट इज योर इमल्शन, ठीक है। तो कंपैरेटिवली आपका जो जब भी आप डोज निकालोगे इन तीनों में से, तो ऑब्वियसली जो आपका शुगर का सॉल्यूशन है, सिंपल शुगर विच इज डिसॉल्व्ड इन योर वाटर, वो हर बार यूनिफॉर्म आएगी क्योंकि उसमें शुगर ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है। लेकिन जैसे ही हम सैंड वाले में से निकालने की कोशिश करेंगे कि सैंड को हमने डिस्पर्स किया, तो अगर हम स्पून में निकालेंगे तो एक बार हम निकालेंगे तो हो सकता है 10 पार्टिकल्स ही आए सैंड के, फिर दूसरी बार हमने जो स्पून से निकाला उसमें 20 पार्टिकल्स आए। So it is non-uniform in comparison to solution. Now fourth is the advantage of solution is it can be used to reduce the effect of irritants or to minimize adverse effect of few drugs. Now suppose एक ड्रग है जिसको अगर आप हायर कंसंट्रेशन में दे रहे हो, मतलब अगर मैंने एक 10 mg ड्रग है उसको 1 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, बट इट इरिटेट्स योर म्यूकोजल लाइनिंग, वो आपकी GIT लाइनिंग को इरिटेट करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं 1 ml की जगह 10 ml वाटर यूज कर रही हूँ और 10 ml ही आपका ड्रग डाल रही हूँ, तो उस केस में क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, इफेक्ट डाइल्यूट हो गया। तो जैसे ही उसको GIT म्यूकोजल लेयर के कॉन्टैक्ट में विल ब्रिंग, उसमें जो है उसके इरिटेंट जो प्रॉपर्टी है वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। Then you have adverse effect of drugs, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है आपका, पोटेशियम क्लोराइड इट कॉजेज वेरियस एडवर्स इफेक्ट, वो बहुत एडवर्स इफेक्ट करता है जो पोटेशियम क्लोराइड है, इट कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन इफ वी गिव डाइल्यूटेड पोटेशियम क्लोराइड, तो उस केस में क्या है, ये इफेक्ट्स जो है ये भी मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। देन यू हैव व्हाट आर द disadvantages of solution. I guess you people, if you increase brightness of your screen, you might be able to see. My battery is very low; it is just 5%, so the brightness is itself reduced. Is it fine? You people just increase brightness Yes, of your ma'am. your screens. Okay. Now, Yes, what are ma'am. what are the disadvantages of solution? First is कि solutions जो है they are bulky for transportation and carriage purpose. मतलब solution obviously syrups जो होते हैं they come in bottle में आएगा, इधर प्लास्टिक बॉटल में आएगा या ग्लास बॉटल में आएगा। सिमिलरली अगर उसी ड्रग का इफ वी हैव अ टैबलेट और कैप्सूल, वो तो सिंपल एक थिन स्ट्रिप में आ जाएगा, और क्योंकि वो ड्राई वेट है, उसमें लिक्विड मीडियम भी नहीं ऐड हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी, उसको हम कैसे भी स्टोर करें ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन बॉटल्स को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वी हैव टू कीप अपराइट, हम उल्टा भी नहीं रख सकते कि कैप डाउन कर दिए और बॉटल उल्टी करके रख दी। सो देयरफॉर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज दे आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर बिकॉज दे आर बल्की। ऑब्वियसली आपका जो टैबलेट है उसमें तो सिंपल एक एल्यूमिनियम फॉइल का लेयर होता है बाहर, तो इट इज लाइट वेट। लेकिन जो आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म हुआ, सिरप हुआ, सिरप में आपका ग्लास बॉटल में सिरप है, ग्लास का अपना वेट है, सो इट इज बल्की। नाउ सेकंड डिसएडवांटेज इज कि लिक्विड डोजेज फॉर्म वी कैन नॉट यूज लिक्विड डोजेज फॉर्म फॉर एनी ड्रग्स व्हिच हैव अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर, ठीक है। उनके केस में हम लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं यूज कर सकते बिकॉज हम उसके टेस्ट को मास्क नहीं कर पाएंगे। Whereas in case of tablets and capsule you can mask the taste. जैसे हमने टैबलेट पंच किया और उस टैबलेट को एक थिन फिल्म से कोट कर दिया जो कि स्वीट फिल्म है, तो वो जो फिल्म है वो जब इफ स्वेलो वो माउथ में डिसॉल्व नहीं होती, वो जाके स्टमक में डिसॉल्व होती है, तो ऊपर से तो आप इजीली स्वेलो कर सकते हो, आपको तो स्वीट टेस्ट आएगा। सिमिलरली कैप्सूल के केस में कैप्सूल शेल इज टेस्टलेस,
लेकिन कैप्सूल शेल जो है इट विल रिलीज द कंटेंट्स इन योर स्टमक, वो स्टमक में रिलीज करेगी। तो ऑब्वियसली अगर कोई बिटर ड्रग है वी कैन इजीली टेक इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, बट सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन के केस में इवन इफ यू ऐड स्वीटनिंग एजेंट्स बट फिर भी आपके ड्रग का कुछ बिटर अगर टेस्ट है तो वो फिर भी रह जाता है। देयरफॉर that is one of the disadvantage of liquid dosage form. Now third is to administer any liquid dosage form we need an accurate cap or spoon to measure the dose. You might have seen जो सिरप्स आते हैं, सिरप के ऊपर एक प्लास्टिक कैप लगा होता है बाहर, एंड देयर आर मार्किंग, उस पर मार्किंग लगी होती है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। ठीक है। नाउ फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अगर कैप आपका गुम हो गया तो आप स्पून से कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि आज भी मैंने 2 ml लिया था तो कल भी मैं 2 ml ही लूंगा। ठीक है। सो इट नीड्स एक्यूरेट इक्विपमेंट टू मेजर द डोज। नाउ अदर डिसएडवांटेजेस की इफ यू स्टोर योर लिक्विड डोजेज फॉर्म, हो सकता है द कलर चेंज हो जाए, आपके पहले वो पिंक था नाउ इट हैज टर्न येलो, हो सकता है उसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड मैटर बन जाए, हो सकता है कि माइक्रोबियल अटैक से द माइक्रोब स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लिक्विड डोजेज फॉर्म, हो सकता है कि जो कंटेंट्स है वो ड्यूरिंग सर्टेन शेल्फ लाइफ, जैसे अगर मान लो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो उसमें गैसेस बन जाए, वेपर प्रेशर बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होता है बॉटल जो है बर्स्ट भी कर सकती है। तो यू माइट हैव सीन व्हेनेवर देयर इज अ लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसमें ऊपर हमेशा मार्जिन छोड़ा जाता है, इट इज एम्प्टी, ऊपर से वो कभी भी कंप्लीटली जो है अपर मोस्ट लेयर तक फिल नहीं की जाती, उसमें देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन। वो इसलिए दिया जाता है कि इन केस अगर कोई गैस फॉर्मेशन होता है तो हमारा बॉटल जो है वो बर्स्ट ना करे। ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू एडिटिव्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Okay. Audible, ma'am. So now there are few additives which are added into any solution. First is buffer. Buffer is any chemical substance जो resist करता है pH change को। Now suppose if our drug it is only stable between 4 to 5 pH, अगर वो 4 से 5 pH के बीच ही if it is stable, so we will add any chemical agent जो उस आपके solution के pH को maintain करके रखे, ना वो 4 से नीचे drop down होने दे, ना वो 5 से ऊपर बढ़ने दे, क्योंकि जैसे ही आपका पीएच या घटेगा या बढ़ेगा तो आपकी जो है ड्रग जो है वो डिग्रेड हो सकती है। ठीक है। या उसके एक्टिविटी में चेंज आ सकता है। तो बफर्स हम ऐड करते हैं। सेकेंड इज आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स। आइसोटोनिसिटी आपको पता होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन सॉल्यूशन। सपोज जैसे आरबीसी के केस में मैं आपको बताती हूँ, अगर रेड ब्लड सेल हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब उसका पीएच कितना होता है 7 होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है 7.4 होता है ना, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पीएच भी 7.4 होगा। तो उस मीडियम में अगर हम रेड ब्लड सेल डालेंगे तो वो रेड ब्लड सेल उसमें इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर आइसोटोनिसिटी आपकी उसमें मतलब पीएच 7.4 नहीं है, फ्लक्चुएट कर गई, तो आपकी जो सेल है वो बर्स्ट कर सकते हैं, स्वेल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके मीडियम का कंसंट्रेशन थिक या थिन कैसा भी होगा, तो आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स आर यूज्ड इन केस ऑफ इंजेक्शन, कि अगर हमें इंजेक्शन देने हैं ब्लड में, तो मैंने कहा था कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक नहीं है ब्लड सेल्स के साथ, तो ब्लड सेल्स या तो श्रिंक कर जाएंगे या हो सकता है स्वेल करके बर्स्ट भी कर जाए। तो इंजेक्शन के केस में वी हैव टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ whenever you use any solution जो आपने म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई करना है, उसके केस में भी आपको आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर चाहिए होते हैं। या फिर इफ यू आर यूजिंग एनी या एडमिनिस्ट्रिंग एनी फॉर्मुलेशन इनटू योर आई एरिया, आई में जो आपके सॉल्यूशन जाते हैं, आई की जो फॉर्मुलेशन होते हैं उनको ऑप्थेल्मिक्स कहते हैं। ठीक है। नाउ मोस्ट वाइडली यूज्ड आइसोटोनिक मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड NaCl। आप लोगों ने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया है कि इफ यू यूज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, मतलब 0.9 ग्राम्स आपने NaCl वेट किया, यू डिसॉल्व इट इनटू 100 ml ऑफ वाटर, तो उस वो जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है। उसमें अगर आप रेड ब्लड सेल्स डालोगे तो रेड ब्लड सेल्स ना श्रिंक होंगे ना स्वेल होंगे। लेकिन अगर आप आपकी कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट कर गई, 0.9% नहीं है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, उस केस में आपके ब्लड सेल्स या तो श्रिंक कर सकते हैं या स्वेल कर सकते हैं। ठीक है। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज। देन कम्स की सर्टेन आपके सॉल्यूशंस होते हैं जिसके केस में वी डिजायर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी इज
विस्कोसिटी एनहांसर जो है वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि फ्लो आपका किसी भी सॉल्यूशन का रिटार्ड हो या किसी भी लिक्विड मीडियम का रिटार्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन वन ग्लास वी टेक वाटर, इन वन ग्लास वी टेक हनी। अब हम अगर उसे गिराने की कोशिश करें सिंक में तो वाटर जल्दी जल्दी गिर जाएगा, बट हनी जो है, हनी विल रेजिस्ट द फ्लो बिकॉज हनी इज विस्कस इन कंपैरिजन टू योर वाटर। तो विस्कोसिटी एनहांसर्स आर डिजायर्ड इन केस ऑफ जैसे आपका टॉपिकल फॉर्मुलेशंस हुआ, जैसे लोशंस हुआ आपका। तो लोशन हमेशा देखना कि लोशन जो है, लोशन में थोड़े विस्कस होते हैं। जैसे लोशन अगर मैंने हाथ पे अपने एक लेयर लगा दी तो इवन इफ आई टिल्ट माय हैंड तो वो लोशन गिरेगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली आई के केस में भी कि व्हेनेवर वी आर एडमिनिस्ट्रिंग एनी ड्रग इनटू आई के साथ उस ड्रग का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ दैट कांटेक्ट वी यूज विस्कोसिटी एनहांसर ताकि वो जो ड्रग है वो ज्यादा टाइम के लिए आई के साथ कांटेक्ट में रहे और जैसे हम ब्लिंक कर रहे हैं तो एकदम से कि पूरा का पूरा जो हमने ड्रग डाला है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। So that is why viscosity enhancers are required. Then you have कि now we know कि liquid dosage form है, उसमें liquid medium है, तो liquid medium में जो microbial growth जो है वो बहुत easily हो जाता है। So therefore to prevent that microbial growth कि कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई या कोई वायरस उसमें ग्रो ना कर जाए, we use preservative, ठीक है। प्रेजर्वेटिव का काम क्या होता है कि इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या तो वो अरेस्ट कर देगा ग्रोथ को या वो किल कर देगा, ठीक है। अब आपके जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? हो सकता है कि जिसमें आपने, जिस इक्विपमेंट में आपने, बड़े सिलेंडर में जिसमें आपने सिरप बनाया था वहीं से आ जाए, हो सकता है आपके लैब के एनवायरनमेंट से आ जाए, हो सकता है कि जो पर्सन इज इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, की स्नीजेज या वो छींक मार दे या वो खांस ले तो पर्सन से आ जाए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी यू ऑलवेज यूज अ प्रेजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए। अब प्रेजर्वेटिव होना कैसा चाहिए? एक आइडियल प्रेजर्वेटिव कैसा होता है? एक आइडियल प्रेजर्वेटिव ऐसा होता है जो मल्टीपल माइक्रोब्स के ऊपर एक्ट कर ले, मतलब इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? ब्रॉड एक्टिंग होनी चाहिए। मतलब अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मार रहा है, ग्राम नेगेटिव को भी मार रहा है, फंजाई को भी मार रहा है, वायरस को भी मार रहा है, ठीक है, ताकि हमें अलग अलग माइक्रोब्स के अगेंस्ट अलग अलग प्रेजर्वेटिव ना ऐड करने पड़े, हमारा एक ही प्रेजर्वेटिव से काम चल जाए। नाउ इट शुड बी स्टेबल, उसका जो शेल्फ लाइफ है वो इतना होना चाहिए कि जितना आपका ड्रग का शेल्फ लाइफ है आपके प्रेजर्वेटिव का भी उतना हो। मतलब अगर सपोज हमारे ड्रग का शेल्फ लाइफ, हमारी ड्रग जो है 2 years के लिए स्टेबल रहती है, एक्टिव रहती है, और इफ वी ऐड एनी प्रेजर्वेटिव जिसका शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 months है, तो हमने ऐड कर दिया, अब हमारी ड्रग का 2 years का शेल्फ लाइफ, बट वी हैव एडेड अ प्रेजर्वेटिव जिसका सिर्फ 6 months है शेल्फ लाइफ। तो 6 months के बाद जो है प्रेजर्वेटिव अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा। तो नेक्स्ट के जो 1.5 years है उसमें प्रेजर्वेटिव की एक्टिविटी लूज होगी, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ तो कभी भी हो सकता है, एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई योर प्रेजर्वेटिव शुड हैव अ शेल्फ लाइफ व्हिच इज इक्वल टू योर एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट जो आपने यूज किया है या उससे ग्रेटर हो, ठीक है। नाउ योर प्रेजर्वेटिव शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए कि वो बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक हो, नॉन सेंसिटाइजिंग। योर प्रेजर्वेटिव इट शुड बी इनर्ट विद टू अदर सब्सटेंसेस, वो कंपैटिबल होना चाहिए जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किया, ना तो वो आपके ड्रग के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ना ही आपके मीडियम के साथ रिएक्ट करना चाहिए। एंड इट शुड बी फ्री ऑफ टेस्ट एंड ओडर, उसका खुद का कोई टेस्ट और ओडर नहीं होना चाहिए कि लास्ट में हमने प्रेजर्वेटिव ऐड किया, अभी तक हमारी फॉर्मुलेशन ठीक थी, अब प्रेजर्वेटिव ऐड करके बिटर टेस्ट आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो योर प्रेजर्वेटिव शुड बी free of taste and odor. Now, there are various types of preservatives which are used. It can be single preservative or it can be combination of preservatives. So, सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल में वाइडली यूज क्या है? इथेनॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है ये दोनों बहुत वाइडली यूज होते हैं। दे आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक सिंपल सा एग्जांपल है, नाउ डेज यू पीपल आर यूजिंग सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर क्या है? लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर में इसका मेजर कंपोनेंट या तो इथेनॉल होता है या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और इथेनॉल क्या करते हैं? हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो उसको डिहाइड्रेट करके मार देते हैं, ठीक है। Now second preservative which major class of preservative which is used in case of solution is benzoic acid and sorbic acid. तो benzoic acid and sorbic acid जो है they are used in concentration of 0.1 to 0.5%, और ये सिर्फ नॉन आयनाइज फॉर्म में इफेक्टिव होती है, ठीक है। आयनाइज फॉर्म में ये इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है।
Then you have esters. There are certain esters like methyl ester, propyl and butyl ester of para-hydroxybenzoic acid. Parabens भी कहते हैं इसको. They are effective over a pH range of 4 to 8. ठीक है? And they can be used up to a concentration of 0.2%. Now usually क्या होता है, esters जो होते हैं, we use combination of esters. क्योंकि we want एक तो synergistic effect आ जाए. I have earlier explained in previous lecture what is synergistic effect. Secondly, आपका जो है ऐसा देखा गया है कि one type of ester is only active against one type of class of microorganism. So we want broad acting preservative. तो in case अगर हमें कोई ऐसा preservative नहीं मिल रहा है कि which is broad acting, तो हम 2 different class के esters को use करके we can achieve action against wide range of bacteria. फिर आते हैं quaternary ammonium compound. So the common quaternary ammonium compound which is used is benzalkonium chloride. इसका concentration is 0.002 to 0.02%. Now it has a very good activity और ये different broad range of pH में आपको जो है ये वाला preservative जो है activity show करता है 4 to 10 pH के बीच में, और it is stable to मतलब most of the types of temperature, cool, cold and hot temperature. So it is widely used. Benzalkonium chloride is widely used. लेकिन there is restriction with this preservative कि this preservative it is cationic in nature, इसका positive charge होता है. And if your solution it contains any drug of any excipient जो negatively charged है, उस केस में हम ये वाला preservative नहीं ऐड करेंगे because we know opposite charges attract each other. अगर हमारी अनायनिक ड्रग में इस प्रेजर्वेटिव के साथ ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाए जो इनएक्टिव हो, जो हमारी ड्रग की एक्टिविटी को खत्म कर दे या प्रेजर्वेटिव की एक्टिविटी को खत्म कर दे, तो उस केस में वी विल नॉट यूज दिस प्रेजर्वेटिव. फिर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. Antioxidants are generally added into any formulation because we know oxidation एक major reaction mechanism है जिसकी वजह से हमारे contents जो होंगे, चाहे वो drug होगा चाहे excipients है, उनकी property lose हो सकती है. हो सकता है हमारी drug oxidize हो जाके oxidation reaction के बाद ऐसा form oxidized form में convert हो जाती है जो inactive है. ठीक है, तो उस केस में we use antioxidant जो कि oxidation को prevent करे. ठीक है, इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है विटामिन सी. विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यूज होता है बिकॉज इट इज एडिबल, और उस केस में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको यूज करने के लिए. अदर्स आर विटामिन ई भी यूज होता है, प्रोपाइल एंड ऑक्साइल एस्टर्स ऑफ गैलिक एसिड, टोकोफेरॉल, सोडियम सल्फाइड, ये सभी जो है एंटीऑक्सीडेंट दे कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. ठीक है, नाउ ये तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट. नाउ इफ देयर इज एनी ड्रग व्हिच इज whose taste is very bad, bitter tasting drug है, उस केस में we need to add sweetening agent. तो common sweetening agent जो है वो सुक्रोज यूज होता है. ठीक है, सुक्रोज के मल्टीपल 2 तरह के एडवांटेज है. फर्स्ट, एक तो वो स्वीटनिंग प्रॉपर्टी आपको दे देगा आपके सॉल्यूशन को. सेकंड, वो जो है विस्कोसिटी एनहांस कर देता है. जैसे मैंने सिरप में कहा, तो सिरप का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सुक्रोज. सिरप को जब आप ऐसे हल्का सा गिराएंगे तो उसका फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो धीरे से गिरेगा. तो सुक्रोज होता है सिरप्स में जो प्रेजर्वेटिव जो आपको स्वीटनिंग एक्टिविटी भी प्रोवाइड कर देता है और विस्कोसिटी एनहांसमेंट भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, लेकिन इफ देयर इज एनी फॉर्मुलेशन जो डायबिटिक पेशेंट को देनी है, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट स्वीटनिंग एजेंट्स यूज कर देंगे जैसे सॉर्बिटोल, मैनिटोल, ग्लिसरॉल. ठीक है, अब जो शुगर है आपका, वी नो शुगर इज कलरलेस, वो अपनी तरफ से कोई कलर नहीं प्रोवाइड करेगा. तो इट इज द एडवांटेज कि वो हमारे ड्रग के जो हमने प्रिपेयर किया है सॉल्यूशन, उसके कलर को चेंज नहीं करेगा. वी नो इट इज वाटर सॉल्यूबल एंड इट इज स्टेबल ओवर अ वाइड पीएच रेंज. 4 to 8 pH रेंज के बीच में सुक्रोज जो आपकी स्टेबल रहती है. इट इंक्रीजेस द विस्कोसिटी, और सुक्रोज को आप यूज कर सकते हैं टू मास्क द सॉल्टी टेस्ट और बिटर टेस्ट ऑफ एनी ड्रग, and similarly it has a soothing effect on throat. फिर आते हैं फ्लेवर्स एंड परफ्यूम कि देयर आर फ्यू टाइम्स कि हम लोग जो है अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर अगर फाउल ओडर आ रही है किसी ड्रग से, तो वी यूज फ्लेवर्स एंड परफ्यूम. ठीक है, अब ये जो फ्लेवर्स और परफ्यूम्स है, ये फ्लेवर जो है आप कोई फ्रूट जूस भी यूज कर सकते हो नेचुरल, आप कोई ऑयल भी यूज कर सकते हो, एरोमेटिक ऑयल, पेपरमिंट ऑयल हुआ, लेमन ऑयल हुआ. पेपरमिंट ऑयल का जो है खुशबू वो कैसा होता है, जैसे पुदीने के पत्तों का होता है. लेमन ऑयल का कैसा होता है, जैसे लेमन का होता है.
ठीक है, बट nowadays artificial sweeteners and perfumes are more preferred because ये एक तो सस्ते आते हैं, secondly they are readily available, third इसमें क्या होता है microbial growth इतना ज्यादा नहीं होता है in comparison to natural flavors and perfumes. ठीक है, उसके बाद जो जितने भी हैं ये classification and your method of preparation of solution we'll cover in next lecture. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because my battery is very low, so I'll just take attendance of the class. There are only 35 or 44 of you, what 43 of you are attending this lecture. Ointment is semi-solid, yes. Okay. So is there any doubt? आज का जो भी हमने cover किया, is there any doubt? किसी को कोई doubt है? I will just send these slides in your WhatsApp group. But मेरे घर पे अगर light आ जाएगा तो मैं send कर पाऊंगी because my battery is too low. So probably my phone will switch off in 1 or 2 minutes. So is there any doubt? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No,